وسیر صاحب جی، جی نوابزادہ افتخار احمد خان صاحب جی، شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ملک 70% سے زیادہ زراعت سے وابستہ ہے جناب اسپیکر، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اس طرف کوئی توجہ نہیں کی جا رہی۔ آج صورتحال یہ ہے، 2 سال پہلے کھاد بیج کے جو ریٹ تھے، آج وہ ریٹ اس سے کہیں زیادہ ہیں، تو کاشتکار کا جو اس کا کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ اس کی کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے، مگر گندم اور دوسری فصلوں کے جو ریٹ ہیں وہ اسے وہی حساب کا ریٹ مل رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، گزارش ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے آپ یہ دیکھیں کہ دوائیاں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ 2 نمبر مل رہی ہیں۔ کاشتکار کپاس کو، دھان کو بار بار سپرے کرتے ہیں، اس سے ان کی کاسٹ بڑھتی ہے اور وہ اپنا صحیح ریٹ، جب اس کا فصل تیار ہوتی ہے تو اسے صحیح ریٹ نہیں مل سکتا، وہ اپنی کاسٹ کو میٹ نہیں کر سکتا۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ اس طرف حکومت خصوصی طور پر توجہ دے اور کوشش کرے کہ دوائیاں جو ہیں وہ کاشتکار کو خالص مل سکیں۔ ساتھ ہی جناب اسپیکر، پچھلے 1 سال سے اس معزز ہاؤس میں ٹڈی دل کے بارے میں بار بار بات کی جا رہی تھی، مگر توجہ نہ دینے کی وجہ سے تقریباً کاشتکار جو ہے وہ 1 سال پیچھے چلا گیا ہے۔ اس کی دھان، کپاس، مکائی، باجرہ کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ وہ 1 سال کا نقصان جو اسے ہوا ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ اسے سبسڈی دی جائے اور کمپنسیٹ کیا جائے۔ اور آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ جناب اسپیکر، زرعی ترقیاتی بینک سے کاشتکاروں کو آسان شرح سود پر لونز دیے جائیں تاکہ وہ اپنی آئندہ فصلیں کاشت کر سکیں۔ شکریہ جی۔ شکریہ جناب نواز صاحب جی۔ ملک نواب شیر وسیر صاحب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آج آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں پاکستان میں بسنے والے تمام مظلوم کسانوں کی بات کر سکوں۔ میرے قابل احترام منسٹر صاحب نے اپنی ڈیبیٹ کو اوپن کرتے ہوئے بہت سی خوبصورت تجویزیں دی ہیں۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں ان کو، اگر وہ ان تجاویز پہ بھی عمل کروا لیں۔ ہماری فل کوشش، سپورٹ ان کے ساتھ ہے، کیونکہ پاکستان کی معیشت زراعت پہ مبنی اگر ہے، میں اگر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ کہا جاتا ہے، ہم سنتے آئے ہیں لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے، نہ کسان کو عزت دی جاتی ہے معاشرے میں، اور نہ کسان کو کھیتی باڑی میں ان کی مدد کی جاتی ہے۔ مثلا آپ گندم کو لے لیں، میں آپ سے جناب چیئرمین آپ کے وساطت سے اگر منسٹر صاحب سے یا اپنی گورنمنٹ سے یہ سوال کروں کہ ہم سن رہے ہیں کہ ہم گندم باہر سے منگوا رہے ہیں، اگر میں یہ سوال کروں کہ گندم کو جو باہر سے ہم منگوائیں گے وہ ہمیں پر من کتنے میں پڑے گی، تو پھر ہم اندازہ لگا سکیں گے کہ پاکستان میں بسنے والے کسان کو ہم گندم کا ریٹ کیا دے رہے ہیں۔ اور پھر ستم درفی یہ ہے کہ ہم پہلے تو کوستے تھے کہ مڈل مین جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے۔ جناب چیئرمین، مڈل مین زیادتی کرتا ہے، ہم سے سستی چیز خریدتا ہے اور مہنگی بیچتا ہے۔ اس دفعہ تو ہم نے دیکھا، خاص طور پہ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، کہ 1400 روپے میں سے ہم سے گندم زبردستی خریدی گئی
किसान के घरों से जो उसके खाने की गंदम थी वो भी ली गई, लेकिन 1650 रुपए में फ्लोर मिलों को बेची गई। अब 1650 रुपए में जब आप फ्लोर मिल को बेचेंगे जाता है। मैं सवाल करता हूं कि इससे जरा हमें जरूर आगाह करें, हमें बाहर से गंदम क्यों मंगवानी पड़ रही है? एक तो मौसम की बड़ी तब्दीली है, जब गंदम की पकाई का वक्त आता है तो बारिशों की वजह से गंदम बहुत जाया हो रही है। हमारी 50% जो गंदम की बिजाई है, काश्त जो है, उस पर असर पड़ता है। हमारी यील्ड कम हो रही है। जहां हम 40-50 मन लेते थे वहां 20-25 मन पे आ गए। अगर 1400 रुपया रेट दिया जाए और 20-25 मन एवरेज हो तो 35-30 हजार रुपया जिम्मेदार को जो पड़े, उस पर लागत कितनी आती है जनाब स्पीकर? उस पर उसका बीज कितना महंगा है। और फिर सबसे बड़ी सितम यही भी है, अभी मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे बीज के मुतल्लिक कि हमें कब से गंदम का बीज नहीं दिया गया, अरसा दराज से हम पुरानी गंदम का सील जो है वही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी एवरेज पे फर्क पड़ गया। हमारा अयूब रिसर्च फैसलाबाद में कायम है, इतने बड़े रकबे पे मुहित है और इतने बड़े अखराजात होते हैं, लेकिन कोई रिसर्च नहीं होती। तो फिर हम क्या करें, किसान क्या करे? हम तो चाहते हैं कि अपने मुल्क को खुशहाल करें, हमें अच्छा बीज दिया जाए, हमें सस्ता बीज दिया जाए, हम बहुत ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। मेरी तजवीज होगी अपने वक्त की हुकूमत को, अपने मिनिस्टर साहब को, कि जनाब आप हमें अच्छा रेट दें, हमें अच्छा बीज दें, हमें सस्ती खाद दें, हमें सस्ता बिजली दें और उसके साथ साथ हमारा टैरिफ ठीक हो, हमें नहरी पानी ठीक दे। तो हम चैलेंज करते हैं कि हम पाकिस्तान को नहीं, सिर्फ पंजाब जो है वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं दुनिया को गंदम दे सकता है। आप हमें सिर्फ रेट दें, आप हमें चीजें प्रोवाइड करें। लेकिन होता क्या है जनाब कि हमें कुछ नहीं मिलता, बातें बातें होती हैं। बजट में भी अगर हम देखते हैं, ऐनक भी लगा के देखते हैं, तो किसान के लिए कुछ नहीं है। खाद का कहा गया कि सस्ती कर दी गई है, लेकिन अभी तक खाद भी नहीं हमें सस्ती मिली। तो यकीनन मैं ये कहूंगा मिनिस्टर साहब को कि उनकी ये सारी तजावीज़ों पर हम इत्तेफाक करते हैं और हम ये चाहते हैं कि खाद के रेट, सस्ती खाद दी जाए, सब्सिडी खाद पे जरूरी है, किसान पिस रहा है, उसको रेट जिस का अच्छा दिया जाए। कपास का रेट अगर हम कहते हैं कि 5,000 रुपए मन रखा जाए तो सरमायादार इकट्ठे हो जाते हैं, हुकूमत के अंदर भी बैठे हैं, वो आकर उसकी नफी करना शुरू कर देते हैं, तो किसान की बात जो है वही दब जाती है। तो जब हमें रेट अच्छे नहीं मिलेंगे, हमारे खर्चा ज्यादा होगा, तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे उसकी फसल को? जनाब स्पीकर, मैं एज ए मेंबर पार्लियामेंट एक दर्द रखता हूं अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए। अगर हमें किसान को अच्छे रेट नहीं दिए गए, गंदम का रेट अच्छा नहीं दिया गया, अगले साल किसान गंदम काश्त नहीं करेगा, ये मैं आपको यकीनन कह रहा हूं। हमें बहुत लॉस हो रहा है, फिर हम गंदम की बजाय और फसलों में चले जाएंगे। आप हमें एरिया मखसूस भी शक करें हमारे, लेकिन हमसे पैदावार लें इस मुल्क को खुशहाल करने के लिए, और हम तरक्की की राह पर गामजन हो सकते हैं अगर ज़राअत की सिमत दुरुस्त कर दी जाए, उसके अच्छे नुमाइंदे लिए जाए। जनाब चेयरमैन साहब, मेरी दरखास्त है और सवाल भी है जनाब मिनिस्टर साहब से कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो है, ज़राई चैम्बर क्यों नहीं बनती जहां किसान बैठ के बात कर सके? हमारी आवाज क्यों नहीं बनाई जाती इकट्ठी? कोई यूनियन इधर बनी हुई है, कोई उधर बनी हुई है, कोई किसान के लिए काम नहीं कर रहा। आप, मेरा सबसे बड़ा मुतालबा होगा कि आप ज़राई चैम्बर बना दें, तंजीमें बने, वहां किसानों के नुमाइंदे बैठे। तो ये मेरी इस्तदा है कि आप सबसे पहले तो हमारे अगर तरक्की चाहते हैं, ज़राअत को तरक्की देना चाहते हैं, तो ज़राअत के जानवर नुमाइंदों को मौका मिले और उससे तजावीज़ें लें और उसके लिए आप उनकी चैम्बर बनाएं।
ये मेरी ख्वाहिश होगी और ये मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब इस पर खसूसी तवज्जो देंगे। और मेरी बात अपने प्राइम मिनिस्टर से हुई है, मैं बड़ा मशहूर हूँ उनका कि उन्होंने मेरी सारी बातों को एंडोर्स किया है और उन्होंने ये कहा है कि ये अच्छी बातें, इनको हम ऑन बोर्ड लेते हैं। जब ये अच्छी बातें और भी दोस्त करेंगे उस चैम्बर में बैठकर ऑन बोर्ड लिया जाएगा तो मैं समझता हूँ उससे ज्यादा तकवीयत मिलेगी। और अगर हम किसान की हालत बेहतर कर गए तो पाकिस्तान बेहतर होगा। इसके लिए खाद हो, बीज हो, असली दवाइयाँ हो। अब दवाइयों की जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि वो रजिस्टर अपने मुल्क के अंदर हो जैसे दूसरे मुल्कों में। हमें दवाइयाँ सब जाली मिलती हैं और हमारा नुकसान होता है, पैसे हमसे ज्यादा लिए जाते हैं। तो रजिस्टर और सही दवाई दी जाए, स्प्रे हो, उसका असर हो, किसान अपनी जेब से पैसे देता है तो फायदा पहुंचेगा। मैं इन अल्फाज के साथ आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया। जी थैंक यू। जी मोहतरमा गौस